Welcome back, students. Today is the Q&A session number 10 of NEET Physics, and the chapter is Laws of Motion. This is the first session from the chapter of Laws of Motion, and today I will be taking two questions which were asked in the NEET examination in 2017. So, one of the question is written on the board, and the question is: two blocks A and B are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a spring. It is shown here. Now we have to find the acceleration of A and B after the string is cut. So ये एक string है. This is the string. Means A and B are connected by a string and this is the spring. ये spring हो गया. अब जब हम इसको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि what will be the acceleration of this block A and this block B when this string is cut. तो मैंने यहाँ पे let us say the string is cut at this place. ठीक है. So when this string is cut at this place, what will happen? This body, that is B, it will fall down. ठीक है. And ये जो body है, this block A, ये क्या है? This is still connected with this spring. This is still connected with this string. और ये when the string is cut, then this body will fall down. So now let us take the spring constant. Let the spring constant be K. ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने ले लिया. इस स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K. तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स जो है, एज यू ऑल नो, विल बी इक्वल टू K इंटू एक्स. अच्छा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन विच आई एम जस्ट राइटिंग. दैट इज स्प्रिंग फोर्स जो है, force is equal to kx and it will be directed in this direction. This spring force is basically right now, when we have not cut the string, then this spring force is supporting the weight of these two blocks. ठीक है. तो अगर हम बात करें in equilibrium state, अगर हम बात करें in the equilibrium state, that is when the string is not cut, in the equilibrium state, this kx will be equal to 4 mg. ठीक है. 3m plus m is 4 m into g. So 4 mg is the total weight of the block A and B taken together. So ये हो गया. That is, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ kx is equal to 4 mg. ठीक है. अब हम ये है कब? इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज व्हेन द स्ट्रिंग इज नॉट कट. नाउ व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, व्हाट विल हैपन? मैं यहां लिख देता हूं. व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, ये जो मास B है, दैट इज B विल फॉल डाउन. ठीक है ना? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. बिकॉज this block B is totally free. It is when it is cut down, then this block is totally free and it will fall down under the this influence of gravity. Or we can say, इसका अगर acceleration जो है, let us say if m, if it is A, if the acceleration of this block B is, let us say, AB, I am writing it here as AB, then it will be equal to mg. Or we can say that the acceleration of the block B will be equal to g. ठीक है. B का जो एक्सेलरेशन है, दैट विल बी इक्वल टू g.
ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अभी जस्ट यहाँ लिख लेता हूँ कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इज इक्वल टू जी। अब आता है सेकंड पॉइंट कि जब हम स्ट्रिंग काटते हैं what will happen to the block A? Now when the string is cut, this block is still attached to this spring. The spring force क्या है? When the string is cut, block A is still attached to the spring. ठीक है, ब्लॉक ए जो है इट इज स्टिल अटैच टू द स्प्रिंग। बी तो फ्री हो गया था एंड इट फेल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। सो उस केस में जो बी का जो एक्सेलरेशन आ गया दैट इज इक्वल टू जी। नाउ इसके ऊपर सी, अब मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ये है आपका ये दिस इज द ब्लॉक ए। ठीक है, अब क्या है कि इसके ऊपर ब्लॉक ए के ऊपर दिस इज सपोर्टेड बाय स्प्रिंग। ठीक है, जब ये स्ट्रिंग कट जाता है तो क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स विच इज इक्वल टू 4mg। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इसका जो वेट है इट इज एक्टिंग, इसका जो ये जो इसका जो वेट हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 3m इंटू जी। दिस वेट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो स्प्रिंग फोर्स जो है F is equal to kx, it is acting in this direction. Weight is acting in the downward direction. So net force जो है, net force on this block, net force on A, that is on the block A, net force on A किस डायरेक्शन में होगा? kx इसके फोर्स दैट इज दिस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी 4mg, वेट कितना है 3mg। सो द नेट फोर्स ऑन ए विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स है आपका विच इज इक्वल टू 4mg, वेट है आपका 3mg। सो द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक ए विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये होगा नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, ये इसका डायरेक्शन होगा। अब हमको ये पता है कि नाउ सो नेट फोर्स कितना हो गया इसका, दैट इज इक्वल टू दैट इज ये हो गया 4mg, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू 4mg है, वेट हो गया आपका 3mg, एंड लेट अस से द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू ma। सो अगर ma है तो इसका क्या मास कितना है हमारा 3m है, इंटू लेट अस से द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज a। ठीक है, इसको मैंने a लिख लिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैं इसको जो है आई विल जस्ट ओके आई विल डू इट वन थिंग दैट दीज आर द 4 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें से हमारा कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट दी दिस, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये हो जाता है आपका mg, 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 3m इंटू दी एक्सेलरेशन ऑफ this block A which is AA. So the acceleration of the block will be given by, ये mm cancel हो जाएगा, that is equal to g/3. This is the answer. ठीक है, so हमारा correct answer क्या हुआ, acceleration of the block A is equal to g/3 and the acceleration of the block B is equal to g.
So acceleration of A, first is g by 3 होगा, and B का G है. So the correct answer is the second one, that is the option B. ठीक है ना. So this is how we have to solve this question. यहाँ पे basically जो concept था कि you have to find the net force on this block A after the string is cut, and the net force acting on this block B when the string is cut. जब string cut हो गया तो B block fell, it started falling down under the action of under the influence of gravity. A क्या है, it was still connected with the spring force हमने निकाल लिया था, that was equal to 4 mg. इसका weight जो है वो नीचे लगेगा, तो net force A के ऊपर लगेगा, because spring force is more than the weight of this body. So ये जो हमारा net force A पे क्या है, it is acting in this upward direction because spring force की वैल्यू ज़्यादा है in comparison to the weight of this body A. So the net force हमारा कितना हो गया on A will be in the upward direction, which is equal to mg. ठीक है. और then I have considered the acceleration of this body as AA. So mg will be equal to, इसका मास कितना है 3m है, into the acceleration of this body. तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. So यहाँ से हमको acceleration जो this body A का वो हमारा आ गया g/3. ठीक है. So the correct option is B. Now I will be moving on to the second question of this session. That second question was also asked in the NEET examination in 2017. So the question is now this question, if you just go through this question is very easy. The only thing that you should have a strong base in the conceptual physics में. अगर आपका base अच्छा है, अगर आपको concepts clear है, then ये question जो है बहुत ही आसान होते हैं. And moreover, one most important thing here is that in the NEET examination you are getting only 50 minutes to solve 45 questions. तो हर एक questions को आपके पास में आपको करने के लिए approximately 1 मिनट ही है. So that also has to be taken into account. आपको इसके बारे में सोचना होगा if you want to clear the NEET examination with a good score. You have to practice a lot because physics में concepts clear हो जाने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पर्टिकुलरली मैं अगर नीट की बात करूं तो आपके पास में टाइम बहुत कम होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज 45 क्वेश्चंस. ठीक है. हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पास में 1 मिनट का टाइम है. So that is the reason that you have to practice a lot of questions once your concepts are clear. Now the second question here is, I have marked it here, a rope is wound around a hollow cylinder. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. Of mass 3 kg what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? What is the angular acceleration of the cylinder? Angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton.
ठीक है, ये क्वेश्चन है एंड इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट वन इज 25 मीटर. फर्स्ट वन इज 25 मीटर per second square. B is 0.25 radian per second square. 0.25 radian per second square. ये हो गया B. C दिया हुआ है 25 radians per second square. And fourth is C, D. Fourth is 5 meter per second square. So a rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. तो यहाँ पर एक hollow cylinder ऐसे बना देते हैं. ठीक है. और what is the angular acceleration of cylinder if the rope is pulled with a force होगा, sorry, with a force of 30 न्यूटन. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. इसके 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं. तो यहाँ पर अगर हम सिलेंडर को पुल करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, मान लो ऐसे फोर्स लगा दिया है 30 न्यूटन. मान लो इसका रेडियस आर है सिलेंडर का, ये रेडियस आर है सिलेंडर का एंड दिस सिलेंडर इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन. सो इस केस में अच्छा, रोप इज वोन्ड अराउंड द होल सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस जो है दिया हुआ है. तो जब हम इसको खींचेंगे ऐसे करके, व्हेन द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, देन व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, दिस होलो सिलेंडर. तो देखो आपने पढ़ा होगा जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज गिवन बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला आपको सबको पता है. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, अगर इस फिगर से आप देखो, द टॉर्क विल ऑल्सो बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू आर. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क की जो डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. ठीक है. एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये जो ये आपका जो सिलेंडर है, इट विल बी रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज दिस, इसको ले लिया हमने ओ. ठीक है. इट इज द सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर. तो ये आपका जो हो गया ये. So force into the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. तो ये हो गया आपका R. ठीक है. अब ये दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं. That is I alpha will be equal to F into R. ठीक है. अब hollow cylinder का ये I क्या है? I is basically the moment of inertia. ठीक है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इन द केस ऑफ दिस, दैट इज ये आपका एक हॉलो सिलेंडर है. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू m r स्क्वायर. ये भी आपको पता होगा. ये फॉर्मूलेज हैं, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो I की जगह पे हम लिखेंगे m r स्क्वायर. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. f दिया हुआ है 30 है. रेडियस कितना है मेरा? रेडियस है आपका 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. सो अल्फा जो है विच इज इक्वल टू, अल्फा विल बी इक्वल टू 30 इंटू 0.4. मास कितना दिया हुआ है? 3 kg है. और आर कितना है मेरा? इंटू 0.4 इंटू 0.4. ठीक है. ठीक है. नहीं
तो दिस इज ये मेरा आ जाएगा ये हो गया 30 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू अल्फा जो है ये हो गया m नीचे ले लिया r स्क्वायर हो गया. सो इसको हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48 और ये डेसिमल इसको मैंने डेसिमल हटाया है तो ये 10 हो गया, ये 10 के ऊपर हो गया इंटू 100. ठीक है. सो अल्फा विल बी इक्वल टू ये हम कैंसिल करेंगे, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 25. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया. रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो मेरा आंसर आ गया, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन of this hollow cylinder when it is pulled with a force of 30 Newton will be equal to 25 radians per second square. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर यहाँ अगर आपका आ गया तो ये हो गया आपका सी. ठीक है. एक चीज को ध्यान रखना है कि अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन और इसका जो यूनिट होता है विच इज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2017. Both these, the question number 1 which we have done just now and this question also, both these questions were asked in the NEET examination in 2017. So both these questions are very easy. यहाँ आपको क्या important था आपके लिए, you know the formula for the torque. Torque is equal to I into alpha where I is the moment of inertia. Then second, torque is also given by this F into R. That is force applied into the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation. वो भी मैंने इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, यू शुड नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो दिस सिलेंडर. ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया था, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर. ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस वन जो कि आपको पता होना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा एंड देन टॉक इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इंटू आर. दोनों को इक्वेट किया. एंड द थर्ड थिंग इज दैट यू शुड नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So that is equal to mr square. So so using these these formulas, I have found the value of this angular acceleration. So this is all for the in this session, and in the next session I will continue with the same chapter, and I will be coming up with a couple of maybe 2 or 3 questions in the session number 11, which will be the second session of the laws of motion. So thank you very much again, and have a nice day. Bye.